شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، قسمت ہمارے ساتھ کیا کھیل رہی ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے سوچ میں کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا آنے والا وقت ہمارے لیے کیسا ہوگا۔ ہم چاہتے تو ہیں محبت، پیار اور پرسکون زندگی، لیکن کوئی ہم کو جینے نہیں دیتا۔ کسی کو ہم قسمت ایک تماشا ہے جسے ہم کو نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے۔ مہوش BSc کر رہی تھی، پڑھائی میں کافی اچھی تھی۔ ماں نے چارپائی پہ بیٹھے آواز دی، مہوش پتر اٹھ جا، کھانا بنا لو، تمہارے ابا اور بائی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ مہوش پڑھائی کر رہی تھی، کتاب سائیڈ پہ رکھی۔ اچھا امی، میں برتن دھو دوں پہلے، پھر کھانا بنا دیتی ہوں۔ مہوش کے بابا اسکول ٹیچر تھے، بھائی کی موبائل کی شاپ تھی، ایک بھائی اور اکیلی بہن تھی۔ مہوش بولی، امی جائیں، مجھے دکان سے چکن لا دیں، میں بریانی بنا دیتی ہوں۔ ماں بولی، ہر روز بریانی بنا لیتی ہوں، تمہارے ابا نہیں کھاتے، پھر ان کے لیے الگ سے کھانا بنانا پڑتا ہے۔ مہوش بولی، میں بنا دوں گی، آپ جائیں، امی لے دے چکن مجھے۔ مہوش نے کھانا بنایا، رات ہو چکی تھی۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے کوکنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ طرح طرح کے کھانے بناتی رہی تھی، تجربات کرتی رہی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماں نے بولا، یہ کون آ گیا اس وقت؟ ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ بھائی نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے چاچا اور چچی ہیں۔ مہوش کے چچا چچی سلام کیا، پھر مہوش کے بابا کے پاس بیٹھ گئے۔ مہوش اٹھی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اسٹڈی کرنے لگی۔ مہوش کے بابا نے پوچھا، بھائی اس ٹائم آنا ہوا، اللہ خیر کرے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ چچا بولا، دیکھ بھائی، بہت ضروری کام سے آیا ہوں، میری بیٹی کا رشتہ آیا، لڑکا دبئی ہے، میں چاہتا ہوں لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے عاصم کا وقت پاس کر دوں۔ مہوش کے بابا بولے، اچھی بات ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ چچا کہنے لگے، مہوش اور عاصم کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مہوش کے بابا بولے، دیکھ بھائی، مہوش ابھی پڑھ رہی ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کروانا چاہتا۔ چچا غصے میں بولے، مہوش تم نے میرے عاصم کو دی ہوئی ہے بچپن سے، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم بہانے بناتے ہو اب رشتہ نہ دینے کے؟ مہوش کے بابا نے کہا، بھائی تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، بات صاف سی ہے، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، اور میں اپنی بیٹی کسی نشئی کو نہیں دوں گا۔ چچی چلا کر بولی، شادی کے بعد اللہ نے چاہا سدھر جائے گا، بیوی آئے گی تو سدھار لے گی۔ مہوش کے بابا نے انکار کر دیا، میں ہرگز اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ مہوش دروازے کے پاس کھڑی سن رہی تھی، دل گھبرا رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ بیٹیاں ڈر جاتی ہیں اپنے نصیب سے، وہ کب بھلا منہ بھر کے کہہ سکتی ہیں مجھے اس سے نہیں شادی کرنی۔ ماں باپ جس کے پلے سے باندھ دے، خاموشی سے چل پڑتی ہیں۔ اور پھر کبھی یوں بھی ہوتا ہے، ایک پڑھی لکھی لڑکی جب کسی بے قدرے کے ساتھ بیاہی جاتی ہے تو رسوا ہوتے وقت کہاں لگتا ہے۔ مہوش کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے سامنے کزن عاصم کا چہرہ تھا، جو شرابی تھا اور ایک دو بار اس پہ چوری کا پرچہ بھی کٹ چکا تھا۔ مہوش دعا مانگ رہی تھی دل ہی دل میں۔ چچا غصے سے اٹھے، قسم اٹھا کر کہنے لگے، مہوش میرے عاصم کی مانگ ہے اور میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے لے کر جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مہوش کے بابا بھی غصے سے بولے، میری بیٹی ہے، میں وہیں اس کی شادی کروں، بس جہاں مجھے اچھا لگے۔ چچا غصے سے چلے گئے۔ مہوش رونے لگی۔ ماں نے محسوس کیا مہوش رو رہی ہے، مہوش کو اپنے پاس بلایا۔ مہوش کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ امی، مجھے عاصم سے شادی نہیں کرنی۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بچی، نہ کرنا، کون کروا رہا بھلا تمہاری شادی اس شرابی سے؟ تو نہ اداس ہو۔ مہوش کالج جانے لگی، BSc مکمل ہوئی، رزلٹ کا انتظار تھا۔ بابا نے ایک رشتہ دیکھا، لڑکا وکیل تھا، وہ با اخلاق تھا، سمجھدار تھا، اسے حرام حلال، اچھے برے کی پہچان تھی۔ کسی دوست نے وہ رشتہ بنایا تھا۔ باپ گھر آیا، مہوش کی ماں سے مشورہ کرنے لگا، ایک رشتہ آیا ہے مہوش کے لیے، لڑکا وکیل ہے، اچھا ہے،
तुम बताओ क्या कहती हो। मेरी तबीयत अब ख़राब रहती है, खुदा जाने कब ज़िंदगी साथ छोड़ जाए। चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी का घर बसा दूँ। लड़के के घर गए, घर देखा, बहुत प्यारा घर था। सब लोग बाअखलाक और मेहमान नवाज थे। महविश की माँ को रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़का जिसका नाम तौहीद था, वो देखने में बहुत प्यारा था। उसने झुककर सलाम किया। उसका बात करने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत था। रिश्ता पसंद आ गया। महविश की माँ ने तौहीद की माँ से कहा, बहन आप भी हमारा घर बूहा देख लेना। तौहीद के माँ भी गए, महविश को देखा, बात पक्की हो गई, रिश्ता तय पा गया। इधर चचा लोगों को जब पता चला महविश का रिश्ता कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, अगर हमको ना तो घर उसका भी आबाद ना होने देंगे। हम अपने ही तो कातिल होते हैं, हमारी चाहतों के, हमारी खुशियों के, हमारे ख्वाबों के, हमारी रूह के। तौहीद ने अपनी आपी से कहा, आपी जान मुझे महविश का नंबर दो, शादी से पहले कुछ बातें कर लूँ उससे। तौहीद की बड़ी बहन जो शादीशुदा तौहीद से बोली, तुम वकील हो, उससे सवाल कर करके थका दोगे। बहुत प्यारी और मासूम सी है हमारी होने वाली बाबी। तौहीद बोला, आप ही देना नंबर उसका। आप ही मुस्कुराने लगी, सबर सबर देती हूँ। तौहीद ने नंबर लिया, महविश को मैसेज किया, हेलो कैसी हैं आप। महविश ने रॉन्ग नंबर देखा, नंबर ब्लॉक कर दिया। तौहीद मुस्कुराया, फिर कॉल की दूसरे नंबर से। महविश फ़ोन उठाकर कान से लगाकर खामोश हो गई। दूसरी तरफ से तौहीद बोला, महविश मैं बोल रहा हूँ। तौहीद आपका होने वाला हम सफ़र। महविश की धड़कनें तेज़ होने लगी। पहली बार वो तौहीद से बात कर रही थी। तौहीद ने हाल पूछा, आहिस्ता से बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तौहीद ने मुस्कुराकर कहा, महविश आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। महविश ने आहिस्ता से पूछा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है। तौहीद प्यार से कहने लगा, महविश मुझे गलत न समझना, ना ही मेरा कोई गलत इरादा है। हर किसी की ज़िंदगी है और हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने का। आप मेरे रिश्ते से खुश तो हैं ना। महविश बोली, तौहीद हम लड़कियां खुश कब होती हैं भला। बाबा ने अगर आपको मेरे लिए पसंद किया है तो मैं बाबा की खुशी में खुश हूँ। तौहीद बोला, महविश वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपके दिल में कोई और है। मेरा मतलब आप किसी से मोहब्बत करती हैं। महविश मुस्कुराई, नहीं तौहीद साहिब ऐसा कुछ नहीं है, और यकीन रखें हमारी पाक दामनी का। शादी के दिन करीब आ रहे थे। महविश ख्वाब देखने लगी एक नई ज़िंदगी के। तौहीद से चंद दिन बाद करके ही तौहीद से मोहब्बत हो गई थी। तौहीद दिल में बस गया था। चंद दिन में ही आदत हो गई थी महविश को तौहीद की और तौहीद को महविश की। एक दिन तौहीद काम से शहर से बाहर गया था। महविश सारा दिन इंतज़ार करती रही तौहीद की कॉल का, लेकिन तौहीद ने ना कोई मैसेज किया ना ही कोई कॉल। महविश उदास हो गई। रात 11 बजे कॉल आई। महविश ने जल्दी से फ़ोन कान के साथ लगाया। तौहीद आप कहाँ थे, मेरी जान निकल रही थी, कहाँ चले गए थे आप। तौहीद मुस्कुराया, मेरी जान नहीं रहा जाता ना अब। महविश की आंख से आंसू गिरा। तौहीद अब बाप के बिना ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। तौहीद प्यार से बोला, बस चंद दिन मेरी जान, फिर हम एक हो जाएंगे हमेशा के लिए एक दूसरे की बाहों में। आज शादी थी, ढोल शहनाई बजाई जा रही थी, हर तरफ खुशियों का समा था। दुल्हन बनी बैठी हुई थी महविश, बिल्कुल हूर लग रही थी। बारात पहुंची, महविश बहुत खुश थी। निकाह का वक्त दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, निकाह हो गया। वो दोनों एक दूसरे के हम सफ़र बन गए। लेकिन यहाँ अभी किस्मत का खेल बाकी था, यहाँ एक क़यामत बाकी थी। निकाह हुआ ही था कि चाचू का बेटा आसिम शराब पीकर नशे में धत, हाथ में गन पकड़े हुए शादी हाल में दाखिल हुआ। तौहीद की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। तौहीद के बाबा को गोलियां लगी जो वहीं पे दम तोड़ गए। एक गोली तौहीद को भी लगी थी। कुछ बराती भी जख्मी हुई। आसिम नशे में था, चिल्लाकर बोला, सबको मार दूंगा, जो मेरी महविश को लेने आएगा वो मेरी है, मैं उसको अपना बनाकर रहूंगा। तौहीद के कंधे पे गोली लगी थी, खून बह रहा था। लोग इकट्ठे हो गए, आसिम को पकड़ लिया। पुलिस आ गई, आसिम को गिरफ्तार करके ले गई। दुनिया बदल चुकी थी। वो दुल्हन को लेने आया था। बाबा का कत्ल आंखों के सामने हो गया था।
हर तरफ खौफ हिरास फैल गया था। जिंदगी कैसे काया पलटती है पल भर में। महविश को जब पता चला वो बेहोश हो गई। जल्दी से तौहीद को अस्पताल मुंतकिल किया। अपने कमरे में बैठी दुल्हन बनी बैठी रही महविश। तौहीद के घर वाले ये कहकर महविश को छोड़ गए कि ये मनहूस है, उसके यार ने क़यामत गिरा दी है। अपनी बेटी की रुसवाई देखकर एक जनाजा और उठ गया। महविश के बाबा दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। ये ज़िंदगी जब दर्द देती है तो जीना सजा कर देती है। महविश के हाथों पे मेहंदी लगी, लाल जोड़ा पहने हुए। न जाने कितने अरमान थे, कितने ख्वाब थे, कितनी खुशियाँ थीं। वो एक लाश बनी दीवार के साथ लगी बैठी थी। तौहीद का नंबर मिला रही थी लेकिन नंबर बंद आ रहा था। बाबा का जनाजा हुआ, वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था पल भर में ये सब कैसे हो गया। तौहीद अस्पताल में था, गोली उसके कंधे को छूकर गुजर गई थी। बाबा की मौत का सदमा था। दिन गुजरने लगे, तौहीद घर था। सब ने कहा महविश को तलाक दे दो, वो लड़की अच्छी नहीं है, मनहूस है, बदचलन है। तौहीद खामोश था। कहने लगा हाँ दे दूंगा तलाक, कुछ दिन सब्र कर लें। महविश अपने कमरे में बैठी मोबाइल की तरफ देख रही थी। शायद इंतज़ार कर रही थी तौहीद के फ़ोन का। तौहीद अभी कोई मैसेज करेगा, लेकिन तौहीद 2 महीने गुजर गए थे, कोई मैसेज कोई कॉल ना की थी। महविश ने मैसेज किया, तौहीद आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझसे बात करें तौहीद। तौहीद मैसेज देख लेता लेकिन रिप्लाई न करता। दिन में 50 बार कॉल करती महविश, तौहीद मैं गुनहगार हूँ ना आपकी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है ना, आप मुझे डांट लें, मुझे जो दिल चाहे कह लें, लेकिन अल्लाह के लिए बात करें मुझसे। अपने हाथों की चूड़ियाँ तोड़ने लगी। फिर तस्वीर बनाई, नाजुक कलाइयों से खून बह रहा था। तौहीद मुझे यूं सजा न दें, कुछ तो कहें, तौहीद बीवी हूँ आपकी। तौहीद ने मैसेज भेजा, महविश मुझे मैसेज ना करना, बस 1-2 दिन तक तलाक के पेपर्स भेज दूंगा। महविश ने जब ये पढ़ा बेहाल हो गई। सब ख्वाब खाक हो गए, खुशियों को आग लग गई। चीख चीख कर रोने लगी, अम्मी को आवाज़ें देने लगी। माँ दौड़ते हुए आई, महविश को खुद सीने से लगाया, मेरी बच्ची हौसला करो, अम्मी मैं मनहूस हूँ ना। अपने बाबा की जान ले ली, तौहीद के बाबा की भी जान ले ली। माँ ने बहुत समझाया, बेटी अल्लाह के लिखे पे राज़ी हो जा, सब्र से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। महविश खामोश हो गई, खाना छोड़ दिया। जैसे एक गम एक दुख अंदर ही अंदर खाया जा रहा था उसे। जहेज का सामान तौहीद के घर भेजा हुआ था। तौहीद की बहन की कॉल आई, अपना सामान ले जाएं उठाकर। महविश ने फ़ोन किया तौहीद को, तौहीद फ़ोन बंद न करना, बस एक बार बात कर लो मुझसे, फिर चाहे तलाक दे देना। तौहीद गुस्से से बोला, हाँ सुन रहा हूँ बोलो। महविश थकन भरी आवाज़ में बोली, तौहीद मेरा क्या कसूर है, मुझको किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, मैंने क्या किया है। तौहीद आप तलाक देकर छोड़ जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी ना, मेरी बात सुने, बीवी हूँ आपकी, आपके हाथ में है मेरा जीना भी मेरा मरना भी। बहुत से ख्वाब थे मेरे आपके साथ, बहुत अरमान थे मेरे, सब ख़त्म हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। तौहीद बहुत सारा ख्याल रखना अपना, एक बात कहूँ, सब कुछ वापस ले जाना मुझसे अपना, लेकिन मंगनी की अंगूठी जो आपने खुद पहनाई थी वो मेरे पास रहने देना, चलो हम पास रख लेंगे। तेरी बातें तेरी यादें, मोहब्बत तेरे सदक़े में यही मिलती हैं सौगातें। तौहीद बहुत 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 सारा ख्याल रखना अपना, और हाँ माफ़ कर देना मुझे, मैं पागल सी हूँ, कुछ भी कहती रहती हूँ। तौहीद सुन रहे हो ना। तौहीद खामोश था। ठीक है महविश सो जाओ, रात का 1 बज रहा है। मुस्कुराने लगी, नींद आती नहीं अब, भला सजाए मौत के कैदी को जब खबर हो जाए सुबह उसको सूली चढ़ाना है तो वो कब सो पाता है। कल मुझे तलाक देनी है आपने, तौहीद मेरी जान, कैसे सो सकती हूँ, लेकिन आप कहते हैं तो कोशिश करूँगी सोने की, हो सकता हमेशा के लिए आंख लग जाए, मुझे सुकून मिल जाए। तौहीद ने फ़ोन बंद कर दिया, आंखें बंद करके लेट गई। आंखों से न जाने क्यों आंसू बह रहे थे। सुबह हुई, सब घर वाले बैठे थे, माँ बहन भाई भाभी चचा चाची,
कहने लगे तौहीद आज तलाक देकर जान छुड़वा लो उससे, मनहूस कहीं की। तौहीद उठा, बोला अम्मी जान मैं महविश को तलाक नहीं दूंगा। अम्मी उस बेचारी का क्या कसूर है, उसको किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं हम। अम्मी हम किसी और के गुनाह की सज़ा उस बेगुनाह पे क्यों जुल्म करें। वो पिछले 3 महीने से मेरे वास्ते कर रही है, मुझसे अपना कसूर पूछ रही है। भाई आप ही बताएं क्या कहूँ उससे कि मैं मर्द हूँ और तुम औरत हो, बस तुम्हारा गुनाह औरत होना है। भाई बाबा हमारे फौत हुए हैं तो अपना बाप उसने भी खोया है, हम गुस्से अना में उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें। चच्ची जान आप कहती हैं वो मनहूस है, आप कैसे किसी को गुनहगार ठहरा सकती हैं। अम्मी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। अम्मी वो इस घर की इज्जत है, मेरी बीवी है, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, मुझे माफ़ कर देना अम्मी जान, मैं महविश को लेने जा रहा हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा बेटा सॉरी, हम गुस्से की आग में उस बेचारे को गुनहगार बना बैठे थे। तौहीद महविश के घर आया, महविश बेहाल सी हाल में बैठी हुई थी। तौहीद घर दाखिल हुआ, महविश की माँ ने सर पे हाथ फेरा, बेटा तलाक के पेपर मुझे दे दो, महविश को रहने दो। तौहीद बोला खाला जान महविश को बुलाएं ज़रा। महविश इतने में सामने आई, वो बेहाल थी, तौहीद की आंखों में देखने लगी, फिर बोली आप बैठें मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तौहीद ने कहा हाँ पानी भी लेकर आओ और अपने हाथ का खाना भी बनाकर खिलाओ। वो हारी हुई न जाने क्यों दिल चाह रहा था तौहीद के सीने से लग जाए। खाना खा लिया तो तौहीद बोला महविश अपना सामान पैक करो और मेरे साथ अपने घर चलो। महविश चौंक गई, अपने घर? तौहीद मुस्कुराया, हाँ मेरी जान अपने घर। तौहीद आप मुझे तलाक नहीं दे रहे? तौहीद ने ना में सर हिलाया, जल्दी से घुटने के बल तौहीद के सामने बैठ गई। मुझे तलाक नहीं दे रहे आप? माँ रो रही थी। तौहीद मुस्कुराया, माथे पे बोसा किया, नहीं मेरी जान कोई तलाक नहीं दे रहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। कांपते हाथों से कभी बैग में कपड़े रखती, कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को संवारती, आंखों में आंसू थे, पलकें भीगी हुई थीं, बहुत खुश थी, जैसे दोनों जहां मिल गए हों उसे। तौहीद का हाथ पकड़ा, तौहीद चलें। तौहीद हाथ थामे महविश को अपनी हम सफ़र बनाकर घर ले आया। महविश बहुत खुश थी, बहुत खुश। तेरे हाथ में था मेरा खिलना भी मुरझाना भी, एक सही कदम, एक समझदारी का फैसला, थोड़ी सी हिम्मत किसी को बर्बाद होने से बचा सकती है। 2 बेटे दिए अल्लाह ने। महविश उनको पढ़ा रही थी। तौहीद घर आया, महविश ने पूछा तौहीद आज फिर भूल गए ना दूध का डब्बा लाना। तौहीद बड़े बेटे की तरफ देखते हुए बोला कसम से बहुत जालिम हो, कोर्ट में वकील मैं हूँ, घर में मेरी जज तुम हो, लेकर आया हूँ, कार में पड़ा है, अब मुझे खाना दो जल्दी से। महविश टिंडे की सब्जी सामने रखकर बोली ये लो जान खा लो। बेटा मुस्कुराने लगा, पापा मैंने तो बर्गर खा लिया, आप खाएं टिंडे। तौहीद महविश की तरफ देखकर बोला जान दुनिया में यही सब्जी रह गई थी बस क्या। उनकी मोहब्बत भरी जिंदगी का सफर यूं जारी रहा, सिर्फ एक समझदारी के फैसले ने जिंदगी में खुशियां भर दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।